صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ نماز دل سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، ام المومنین فرماتی ہیں حضور کے دل سے، سینے سے ایسی آواز آتی کھت کھت کھت، جیسے ہانڈی کو چولہے پہ رکھنے کے بعد، سالن پکنے کے بعد کیسے کھت کھت کی آواز آتی ہے، ایسے آواز آتی تھی اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، 1 میل دور تک آپ کے سینے سے جو آواز نکلتی تھی نا اللہ کے خوف سے، وہ سنی جاتی تھی، 1 میل دور تک وہ آواز سنی جاتی تھی، اور نمازوں میں گڑ گڑاتے تھے۔ نمازوں میں، آج نمازوں میں رونا ہی نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ منہ بگڑے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ کیا، تو خدا کے سامنے کھڑا ہے۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو بہت پیاری۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ تمہیں دولہا بناتا ہے۔ اللہ تمہیں نمازی کو دولہا بناتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو تیرے سر سے لے کر آسمان تک نور کے ستون اور نور کی کنڈیلیں ہوتی ہیں، نور ہی نور ہوتا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں، گویا کہ تیرے سر پہ نور کا صحرا باندھا جاتا ہے، اور پھر آسمان کے فرشتے اترتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں نمازی کی۔ سبحان اللہ۔ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میرے بھائی تو الجھ گیا بازار میں، میرے بھائی تو الجھ گیا گیم میں، تو الجھ گیا برائیوں میں، بیوی بچوں میں، سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں، رب کے حقوق تو کیوں ادا نہیں کرتا؟ نماز کے لیے ٹائم نکالو۔ کیوں کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ہے؟ نکالو ٹائم، ٹائم کبھی ملے گا نہیں۔ جب اپنے پیٹ کی گندگی دور کرنے کے لیے روزانہ ٹائم نکالتے ہو، تو اپنی روح کی گندگی دور کرنے کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک تاجر کے پاس پہنچے، کہا بیٹا نماز، کہا بابا ٹائم نہیں ملتا۔ تو وہ اس کے کپڑے کی دکان تھی، وہ کپڑا سوننے لگے بزرگ۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا جب تو نے کہا نا کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو میں تیرے دکان کے تھان سوم رہا ہوں کپڑے، پیشاب اور پاخانہ تو یہی کرتا ہوگا نا، ٹائم نہیں ہے تیرے پاس تو۔ کہا بابا کیسی بات کرتے ہیں، پیشاب لگتی ہے تو باہر جاتا ہوں۔ کہا نادان، پیشاب کے لیے ٹائم ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ جھوٹ ہے، ٹائم نہیں ہے۔ جو جتنا کہتا ہے نا ٹائم نہیں ہے، وہ اتنا بڑا جھوٹا ہے۔ سب ٹائم ہے، کل کے مقابلے میں آج آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ یہ واٹس ایپ دیکھنے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو 3 گھنٹے ہوٹلوں کی کرسی توڑنے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو پورا اخبار چاٹ جاتے ہو، ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ ہوٹل پہ 2 روپے کی 4 روپے کی چائے پیتے ہو، اور خود کے گھر میں چوہے بھوکے پڑے ہوئے ہیں، اور وائٹ ہاؤس پہ تم ایسے تبصرہ کرتے ہو جیسے بل کلنٹن تمہارا کلاس فیلو ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حیرت ہے۔ اپنے مذہب پر تبصرہ کر، اپنے گھر پہ تبصرہ کر، اپنی قوم کے مستقبل پہ تبصرہ کر۔ کیا اونچی اڑان ہو گئی ہے لوگوں کی، زمین کے پیروں کے نیچے کی زمین کے حقائق نہیں پتا، اور آپ جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے حالات پہ تبصرہ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ کے کان میں کوئی کہہ گیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے منصوبے۔ یاد رکھیں اپنا وقت ضائع مت کیجئے، ٹائم بہت دیا اللہ نے، عبادت کرو، وقت نکالو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نور ہی نور ہوتا ہے، اور فرشتے زیارت کرنے آتے۔ کتنا محترم ہو جاتا ہے انسان جب وہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اس کی زیارت فرشتے کرتے ہیں۔ اسی پہ بس نہیں، تیسری منزل، تیسرا درجہ، اس کے سامنے اس کا اللہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ یعنی نمازی اور خدا کے درمیان پھر کوئی پردے نہیں ہوتے، اور اس کو احساس دلانے کے لیے پیچھے سے ایک فرشتہ کہتا ہے بندے تیرا خدا تیرے سامنے، اس کے اور تیرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اگر تو اس کیفیت کو جان لے، اس کی لذت کو محسوس کر لے، تو تو زندگی بھر کبھی سلام ہی نہ پھیرے، اور اسی حالت میں تو دنیا سے جانا پسند کرے۔ یہ نماز ہے، لیکن ہم نہیں۔ اور نماز میں تصورات پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے، نماز میں رو، گڑ گڑاؤ، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ۔ یہ تصور کرو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ جب وضو کرتے تھے تو آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کا چہرہ وضو کرتے وقت تو کیوں پیلا ہو جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے خون آپ کا نچوڑ لیا ہو۔ فرماتے ہیں تجھے پتا نہیں ہے کہ میں کس کے دربار میں کھڑے رہنے جا رہا ہوں، میں کس کے دربار میں کھڑے رہنے جا رہا ہوں۔ اس دربار کی ہیبت کی وجہ سے میرا خون سوکھ جاتا ہے۔ آپ توجہ کریں۔ اور ہم جو ہے وہ
चिल्ला पुकार करते मस्जिद में जाते हैं और चिल्ला पुकार करते मस्जिद से निकल जाते हैं। बताओ कोई अंदाज़े बंदगी नजर आता है? न सर झुकाकर, न आजिज़ी, न इनकिसारी। सबसे बड़ी बारगाह अल्लाह की बारगाह है, वहाँ गिड़गिड़ाओ, वहाँ अल्लाह की बारगाह के अंदर आजिज़ी करो, रब की बारगाह में रो। अल्लाह अकबर। सहाबा जब नमाज पढ़ते थे खुद का एहसास खत्म हो जाता था। बस बात आखिरी करके अपनी बात खत्म कर लूँ और इंशाअल्लाह ताला कल के लिए, फिर कल इंशाअल्लाह कहाँ प्रोग्राम है? मदनी नगर में। और कल का उन्वान बहुत दिलचस्प है और बहुत खूबसूरत भी है और सारे उन्वानात की जान है। इसका मतलब कल का उन्वान है जान ईमान, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, हुजूर से इश्क करना। अल्लाह ने चाहा तो वहाँ गुफ्तगू होगी, लेकिन एक रिवायत पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूँ। नमाज पढ़ने वालों ने कैसी नमाज पढ़ी? एक मरतबा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम सफ़र में थे। हालत सफ़र में हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक जगह पे पड़ाव किया। पड़ाव करने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा में से लोगों से कहा कि तुम में से कौन है दो लोग जो पहरा देंगे? दुश्मन का खौफ नहीं है, पहरा कौन देगा? दो जवानों ने कहा हुजूर हम देंगे, और दोनों पहरा देने लगे। कोई खौफ और खतरा नहीं था। ऐसे में दोनों जवानों ने आपस में बातें की, एक काम करते कि आधी रात एक सो जाए, आधी रात दूसरा पहरा दे, और दूसरा आधी रात सो जाए, पहला पहरा दे। इस तरह रात आधी आधी बांट लेते हैं। तो कहा ठीक है आप सो जाए, मैं पहरा देता हूं। अब हम लोग को कोई काम नहीं होता ना, जैसे मिसाल के तौर पर कारखाना संभालना है रात भर। अब्बा ने कहा कि कारखाना संभालना है, मजदूर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब देखना है, चेक करना है, या होटल चलाना है, गल्ले पे बैठना है, या कुछ और काम। तो कुछ काम नहीं है, सिर्फ देख रेख करना है। तो हम सीधा मोबाइल लेकर बैठते हैं। ये ऐसी बला हो गई है, इसको जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। मैं मना नहीं करता, कौन मना? इस्लाम मना नहीं करता तो मैं कौन होता हूं? लेकिन इसको अपने ऊपर जो आपने मुसल्लत कर लिया है ना, इससे निकलो, इससे निकलो। बस गुस्से रहते हैं। बल्कि अब तो लोग तकरीरों में भी बैठते हैं तो मोबाइल लेके बैठते हैं, मस्जिदों में बैठते हैं तो भी मोबाइल लेके बैठते हैं, घर में बैठते हैं तो भी। अभी इज्तिमाई निकाह से मैं आ रहा हूं, मैंने वहां लोगों को यही कहा, ये मोबाइल की ऐसी वबा फैल गई कि अब पंचायत बैठ रही है, औरतें कहती है कि ये घर में आता है तो मोबाइल में लगा रहता है, हमें टाइम नहीं देता। पंचायत बैठ, तलाक तक की नौबत आ गई। हंसने की बात नहीं है, तलाक तक की नौबत आ गई। मैंने अपने साथियों से मैंने वहां पर कहा मेरे भाइयों, अगर कोई रात भर नमाज पढ़े और बीवी का हक अदा ना करे तो हुजूर ने उस रात भर नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगाई। आका ने फरमाया कि क्या तुम उससे ज्यादा अल्लाह से डरता है? तू रात भर नफिल नहीं पढ़ सकता, तुझे अपनी बीवी का हक भी अदा करना है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया रात भर नफिल पढ़ने से बेहतर है कि तू अपनी बीवी का हक अदा कर उसकी खुशी के लिए। तो अगर नमाज, नफिल नमाज बीवी का हक अदा करने में रुकावट बने तो इस्लाम उसको मना करता है। तो ये मोबाइल के गेम अगर बीवी को टाइम देने में रुकावट बनते तो इसकी इजाजत किसने दी? घर में आकर भी मोबाइल पे घुसे रहते, लगे रहते। नशा हो गया लोगों को, मोबाइल का नशा, नशे की तरह मोबाइल इस्तेमाल करते। हर 2-4 सेकंड पे चेक करते हैं, देखते हैं किसका मैसेज है। अरे तुम्हें बंदों के मैसेजेस का इतना ख्याल है? कभी कुदरत के मैसेज कभी कोई ख्याल कर? कुछ नहीं पता, दीन धर्म कुछ नहीं पता, हर चीज से बेगाने होते जा रहे हैं। लेकिन मरना है, सब यही रहेगा। कब्र में अकेले जाओगे या अपने कफन में अमाल अच्छे बुरे लेकर जाओगे, कुछ और लेकर नहीं जाओगे। सुधरो, सौरो, अपने आप को तब्दील करो, वरना रोते रोते माँ के पेट से आए थे और कब्र के पेट में भी रोते रोते चले जाओगे। उस वक्त पछताने से काम नहीं चलेगा, वक्त तेजी से गुजर रहा है। इमाम गजाली फरमाते हैं वक्त ऐसी तलवार है कि अगर तूने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वो 2 धारी तलवार तुझे ज़बा कर देगी, न तुझे कहीं का नहीं रखेगी, न दुनिया का न आखिरत का। इसलिए इसका सही इस्तेमाल करो, टाइम पास मत करो। हम लेकर बैठ जाते हैं फजूल बातें। अच्छा गेम ही नहीं, अब तो यूट्यूब पर लोग कैसे कैसे गंदी गंदी चीजें देखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए, लोगों को तौफीक दे। उनके पास भी टाइम था, रात भर पहरा देना था। एक साथी सो गया तो इन्होंने सोचा कि खड़े रह के बैठ के करूंगा क्या। उनको जो सबसे पसंदीदा चीज थी नमाज, नमाज शुरू कर दी और तिलावत में इतने मसरूफ हुए कि दुश्मन का गुजर उधर से हुआ तो उसको यूं लगा कि दरख्त है।
दुश्मनों ने आपस में बातें की, दरख्त है क्योंकि एकदम जामिद और साकित खड़ा है। क्या इबादत वाले अल्लाह के लिए खड़े होते थे कि लोग दरख्त कहते थे। इमाम आजम के बारे में मशहूर है कि उनके बाजू में एक काफिर का घर था या किसी का घर था, तो एक छोटी सी बच्ची थी। इमाम आजम के विसाल के बाद उस बच्ची ने अपने बाप से कहा, अब्बा हमारे पड़ोस में जो मुसलमानों के इमाम रहते हैं उनके आंगन में एक दरख्त था जिसका साया हमारे आंगन में पड़ता था, आज वो साया हमारे आंगन में नहीं पड़ता, क्या वो दरख्त काट दिया गया? तो बाप ने आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी से कहा था, बेटी वो दरख्त नहीं था, वो मुसलमानों का इमाम था जो पूरी रात खड़े रहकर अल्लाह की इबादत करता था और उसका साया हमारे घर के आंगन में आता था और आज वो इबादत करने वाला दुनिया से रुखसत हो गया। ये इबादत का अंदाज था। तो बहस होने लगी, दरख्त है कि इंसान? किसी ने कहा बहस मत करो, आसान है, तीर चलाओ, इंसान होगा तो हरकत करेगा, दरख्त होगा तो हरकत नहीं होगी। तीर चले लेकर हरकत नहीं हुई, तीर चले मगर हरकत नहीं हुई। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, नमाज मुकम्मल की तो अपने साथी को उठाया, कहा कि उठो अब आखिरी वक्त आ गया। तो पहला तीर लगा था तो आवाज दे देते। का नमाज में इतना मसरूफ था, ऐसी लज्जत उठा रहा था नमाज की कि मुझे ख्याल ही न रहा कि जिस्म तीरों से छलनी हो रहा है। ऐसी नमाजें अल्लाह तक पहुंचाती है। कम से हम इतना नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं, और अल्लाह से तौफीक मांगो नमाज की। अगर एक नमाज भी दूसरों से ज्यादा पढ़ ली ना, इंशाल्लाह बेड़ा पार है। दो भाइयों का इंतकाल हुआ हुजूर के दौर में। इस हदीस के रावी साद इब्न अबी वक्कास हैं। दो भाइयों का इंतकाल हुआ और दोनों के इंतकाल में 40 दिन का फर्क था। 40 दिन पहले एक भाई मरा, 40 दिन के बाद दूसरा भाई। तो जो भाई पहले इंतकाल किया था, लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। सरकार ने फरमाया, वो जो दूसरा बाद में इंतकाल किया तुम उसकी तारीफ नहीं करते, क्यों? क्या वो मुत्तकी न था? हुजूर वो भी मुत्तकी था, लेकिन वो ज्यादा मुत्तकी था जिसकी हम तारीफ करते हैं। आका फरमाते हैं वो 40 दिन के बाद इंतकाल किया है और उससे जो पहले गया इसने 40 दिन की नमाजें ज्यादा पढ़ी है। जो पहले गया उससे बाद में जाने वाले ने 40 दिन की नमाजें ज्यादा पढ़ी है। एक सजदे की अहमियत तुझे क्या मालूम कि एक सजदा कितना बुलंद कर देता है? इसने तो उससे 40 नमाजें ज्यादा पढ़ी। ये है नमाज की अहमियत। इसीलिए हम जो उम्र लंबी मांगते ना, गेम के लिए नहीं मांगते, इबादत के लिए मांगते कि ज्यादा इबादत लेकर जाएंगे तो ज्यादा अजर मिलेगा। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो माफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।